Hey guys, this is Krishna and welcome back to my channel. Today we are going to start with the role of women and women's organization. So without taking your much time, we are going to just begin with this beautiful video, right? What we are going to see in this video is about the women's in India, like we are going to see the status of women's in India, and also we are going to discuss in very detail, that is Indus Valley civilizations. During the Indus Valley civilizations, what was the role of the women's, like in Rig Vedic period and later Vedic period, in modern period, in Gupta period, and then later in British period, right, in British Empire. What was the role of women and their organizations actually, right? So we are going to cover all the things that are actually necessary for covering this topic. So without taking your much time, let's begin with this beautiful PDF, right? रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जैसा कि हमें पता है जो वुमेन का स्टेटस है वो बहुत ही सारी चीज़ों से, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या रहा वुमेन का स्टेटस, आज के टाइम पे क्या कैसा है वो हम सब देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले जान लेते हैं। एज वी नो दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज़ अंडरगोन ड्रास्टिक चेंजेस ओवर अ पास्ट फ्यू मिलेनियम, right? In ancient time, as we know that the Indian women were completely devoted to their families, right? In the medieval period, which is also known as dark age, because the status of the woman was declined considerably, right? They were not even allowed to go out and move with others. They were asked to stay at home and take care of their children, right? In India, early marriages of the girl was the practice in this time. And as we know that after independence, women came forward all the sectors, and there is a remarkable changes in the status of women in the field of education, art, culture, literature, and science. As we all know that a historical viewpoint to the complexities India continues to face from time to time since independence, but the status of women in contemporary India is a sort of inconsistency, right? So we are going to discuss all the things in very detail. Like we are going to first see the Indus Valley civilization. What was the role of women during this Indus Valley civilization? In Indus Valley civilization, if we do talk about, then what we will see that status of women were fairly good. ठीक है, यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन का जो स्टेटस था वो यहाँ ठीक ठाक था, अच्छा था। यहाँ पे इक्वल ऑनर दिया जाता था, जैसे मैन को ट्रीट किया जाता है वैसे वुमेन को ट्रीट किया जाता था। यहाँ पे उन्हें माता देवी के रूप में भी पूजा उनकी होती थी। एज वी नो दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो मदर गॉडेस की मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं। आफ्टर दैट ऋग वैदिक पीरियड में आए तो यहाँ पे देखा गया है कि जो वुमेन का स्टेटस था वो सुपीरियर था, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन के स्फेयर में वुमेन और मेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी। ऋग वैदिक पीरियड की बात हो रही है। यहाँ पे गर्ल्स वर एक्चुअली परमिटेड टू स्पेंड देयर लाइफ इन गुरुकुल। यहाँ गुरुकुल में गर्ल अटेंड करने जा सकती थी, गुरुकुल के लिए जा सकती थी। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वर एक्चुअली कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर मैरिज। ऋग वैदिक पीरियड के दौरान यहाँ पे जो वुमेन्स थी, जो लड़की थी, उसकी शिक्षा जो था एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता था शादी के लिए, ठीक है। लेटर वैदिक की बात करें तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मैरिज वॉज कंटिन्यूड। यहाँ पे ये तो था, लेकिन डॉरी सिस्टम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका था। इन द एरा ऑफ मुग़ल डायनेस्टी की बात करें तो मुग़ल डायनेस्टी के दौरान क्या देखने को मिलता है कि वुमेन को एक कहीं ना कहीं उन्हें, जैसे आज के टाइम पे चीज़ें देखने को मिलती है ना, जैसे दहेज या ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं आज के टाइम पे, लेकिन वहाँ पे ये देखने को मिलता था कि जो उन्हें वुमेन को एक प्रकार से राइट मिला था, जैसे आजकल बच्चों को राइट मिला हुआ है, उस तरह से उनको भी एक राइट मिलता था वहाँ पे, प्रॉपर्टी राइट, जिसे स्त्री धन कहते हैं, ठीक है। देवर 8 फॉर्म्स आर मैरिज। कब चाणक्य ने बताया है अपनी किताब में कि मौर्य डायनेस्टी के दौरान वहाँ पे 8 प्रकार की शादियाँ का वर्णन उन्होंने किया है। विडोज़ हैड अ राइट टू री मैरी। वहाँ पे बताया गया है कि जो विधवाएं थीं, ठीक है, जिनके पति नहीं होते थे, उनके पास भी यह अधिकार था कि वो मतलब कि वो पुनः शादी कर सकती हैं। गुप्ता एरा की बात करें तो गुप्ता एरा, जैसा कि हमें पता है, वुमेन्स वर अलाउड टू बी एजुकेटेड। यहाँ पे वुमेन्स को मतलब शिक्षित होने का पूर्ण अधिकार था।
मैरिज विथ इन द सेम कास्ट वर प्रिफर्ड, यहाँ पे विथ इन द सेम कास्ट वाली बात चल रही थी कि मैरिजेस होनी चाहिए, हाँ, लेकिन ये भी था कि ये लोअर कास्ट में कुछ ज़्यादा थे, क्योंकि अपर कास्ट में देखने को मिलता है जो यहाँ के राजा थे, जो लोग थे अपर कास्ट वाले, वो 2-3 शादियाँ भी कर रखे थे। ठीक है, तो गर्ल्स वर ट्रेंड इन सिंगिंग एंड डांसिंग। गुप्ता में जैसा कि पता है कि ये गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कहलाता है, तो यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, कल्चर, ये सारी चीज़ को बढ़ावा तो दिया ही गया होगा। सती वॉज नॉट एक्सटेंसिवली प्रिवेलेंट इन दिस एरा, इंजॉइंग पॉलिटिकल पावर। यहाँ पे जो वुमेंस थी वो एक्चुअली पॉलिटिकल पावर को जो है इंजॉय कर रही थी, और उसके बाद वो पॉलिटिकल पावर को भी होल्ड कर रही थी। मिडाइवल पीरियड की बात करें, विद द इनिशिएशन ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया, सोशल मूवमेंट वाज एक्चुअली लिमिटेड, राइट। तो जब मुस्लिम का इनिशिएशन हुआ इंडिया में, ठीक है, जब वो मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है 711-12 में, उसके बाद मुस्लिम का मतलब आते ही रहते हैं, मुग़ल डायनेस्टी, ये वो दुनिया की सारी चीज़ें, तो इससे क्या होता है, जो वुमेन का स्टेटस होता है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था कि वो कहीं भी जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों में इनके जो कल्चरल चीज़ें होती हैं, मानना होता है कि कहीं नहीं निकल सकते, ऐसा जो भी इनके धर्म में वो सारी चीज़ें थी उस समय, जो एक्चुअली इन्होंने ला करके थोप दिया, उससे क्या होता है कि जो सोशल मूवमेंट था वो लिमिटेड हो गया है कहीं ना कहीं। दे वर बैन टू अटेंड पब्लिक फंक्शंस। अब मिडाइवल पीरियड में क्या होता है, वो पब्लिक फंक्शंस को अटेंड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो वुमेन्स पर एक्चुअली गिवन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, जैसा कि हमें पता है मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन की बात करें, चार्टर और वुड्स एक्ट्स की बात करें, ठीक है, इस तरह से एजुकेशन एक्ट्स भी बहुत आए, तो कहीं ना कहीं वो वुमेन्स के वेलफेयर की बात के लिए ही आए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो एजुकेशन फॉर वुमेन्स था, उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए थी वो थोड़ी हाई थी ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय अबोलिश सती, जैसा हमें पता है राजा राम मोहन रॉय जी ने अपने प्रयासों द्वारा जो है सती को अबोलिस्ट करवाया। उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी लोग थे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट एंड गांधी जी, दयानंद सरस्वती जी, इन सभी के योगदान से वुमेन्स का स्टेटस एक्चुअली और ही ऊपर गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। वुमेन्स का ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली जो महिलाओं का संगठन है वो किस प्रकार भारत में है, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम देखते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वुमेन्स का एक्चुअली जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन था वो इस नाम से था। प्री इंडिपेंडेंस में जैसे द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के नाम से था, द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया था एक्चुअली, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस भी 1917, 1925, 1927 में गठित होती रहती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें कि इनके ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ थे, कैसे थे, क्या नाम था, तो उसमें हम देखेंगे कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है उसके नाम से ऑर्गेनाइजेशन था। भारतीय महिला बैंक थी, दुर्गा वाहिनी थी, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन के नाम से जाना जाता था, ग्रामीण महिला संघ भी था, ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। मेन उद्देश्य क्या था, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी हमने ऊपर पढ़े, दुर्गा वाहिनी, भारतीय महिला बैंक और क्रांतिकारी आदिवासी महिला और संगठन, ये सारी चीज़ें जो थी हमने पढ़ा ऊपर, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एक्चुअली। वुमेंस का ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि ये वुमेंस के जो राइट्स होते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे बेसिकली, ठीक है। और जो वुमेंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते थे उनके लिए कंपेन करते थे। और ये वुमेंस पार्टिसिपेशन, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों में उनका जो पार्टिसिपेशन है उस चीज़ को ये इंश्योर करते थे कि वो उसमें स्ट्रेंथनिंग देखने को मिले। अप होल्डिंग नॉन वायलेंस एंड सोशल एम्पावरमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। सपोर्टिंग चाइल्ड एजुकेशन एंड प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर वुमेन्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मैंने मैंने लगभग 1 सेकेंड टाइम देख के बताता हूँ आपको, 9 से 10 मिनट के वीडियो के अंतराल में पूरा का पूरा ये टॉपिक ख़त्म कर दिया है। इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, आपको इतना ही कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो आप इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं और ये देखिएगा, आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू।